Very good morning, dear students. As you all know that we are studying unit 5th, safety, and this is the section 2 of that unit, which name is Together We Go. That means कि हम साथ जाते हैं. In this lesson, a boy is telling about his life schedule and about his story. Going to school in a bus is fun, but it depends on how you behave in the school. School bus. स्कूल की बस में जाने में किसे मज़ा नहीं आता. आप सब लोगों को भी आता होगा. वी ऑल लाइक to go in bus. So when the school bus come, then students become very happy because they enjoy to ride in the bus. Going to school in a bus is fun, but it depends on how you behave in the school. Dear students, everyone loves to go in bus. So here we are saying that going in the bus is a very much fun. Everyone like this, and it depends on how you behave in the school. School bus. Rajat and his friends are well behaved. Here we are talking about a boy whose name is Rajat, and he has a lot of friends, and he is well behaved, and all his behavior is very good. So they enjoy their trip to school. That's why they are going to enjoy the trip to the school. Children who throw water and leftover food from the bus windows bring a bad name to their schools. Dear students, whenever we come at home from school by bus or go to the school by bus, at a time many students do that they throw the water outside of the window of the bus, or throw the door of the bus, and they also throw the leftover food from the bus. So this is a very bad thing. This decreases the reputation of your school. अगर आप अपना बचा हुआ खाना पानी अगर बस के खिड़कियों से बाहर फेंकेंगे तो ये आपके स्कूल की रेपुटेशन को बहुत ही कम कर देगा, आपके स्कूल का नाम भी खराब करेगा. तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. The alarm is loud and clear. My mobile alarm starts ringing at 6 a.m. Here this boy is saying that my alarm is very clear and it daily rings at 6 a.m. in the morning. It tells me repeatedly, get up and get up. As that boy he has set an alarm bell, and it continuously rings, and it just says that get up. That means utho. There is a wake-up call for you. Before I get up and am ready, I find my family already into the middle of their morning chores. Here the boy is saying that when he get up in the morning at 6 a.m., then when he comes to the kitchen or in the middle section of his home, then he finds that everyone is busy in their scheduled work, and they have done already their work. Some work is already done. My grandma has always been an early bird, but she detested the saying an alarm bird catches the worm. Here that boy is telling about his grandmother, that she always get up early in the morning. So he calls his grandmother, an early bird. And but she does not like to listen an early bird, because an early bird likes the worm. They go for searching enough food. Instead of, she has coined a new quote for herself: an early bird is always here. But she does not like that. She does not like that quote, an early bird catches the worm. But she likes. She has made. She has made a quote for herself, and she says about herself that she, as an early bird, is always here. She is the first one to go get ready for the prayers, and then she drops me at the bus stop. Here the boy is saying, यहाँ पे लड़का ये कहता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है बहुत जल्दी उठ जाती हैं, और वो एक अर्ली बर्ड की तरह है, मतलब कि वो जल्दी उठ जाती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चिड़ियाएँ होती हैं वो भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं, सुबह 4 बजे उठ जाती हैं. वैसे उसकी ग्रैंड मदर भी जल्दी उठ जाते थे, और इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर को अर्ली बर्ड कहकर बुलाता था. लेकिन वो उसे
उस नेम को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने अपने लिए एक अलग ही कोड बना रखा था जो अपने आप को कहती थी एन अर्ली बर्ड इज़ ऑलवेज हियर। सबसे पहले उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो खुद रेडी होती थी और उसके बाद प्रेयर मीन्स पूजा करती थी। उसके बाद फिर उसको रजत को बस स्टॉप तक छोड़ने जाया करती थी। Every family member chips in the morning work. Here the boy is saying that everyone is busy in the work. Dad packs my tiffin twice a week and my friends eagerly wait for those 2 days. Here the boy is saying that his mother always ready to his tiffin, but twice in a week his father packs his tiffin. मीन्स उसकी जो मदर उसका टिफ़िन तो रेडी करती थी, लेकिन हफ्ते में 2 बार उसके जो फादर है वो उसका लंच बॉक्स रेडी करते थे। और उसके जो फ्रेंड्स थे वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे ये देखने के लिए कि आखिर आज उसके फादर ने लंच में क्या दिया है। दे relish whatever he puts in. उसके जो फ्रेंड्स थे वो हमेशा एगर रहते थे कि आखिर उसके फादर ने आज लंच में क्या दिया है। मॉम इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर फूड हैबिट्स। Dear students, as we all know that our mother is very particular for our good habits, because she knows well that if we will take the proper diet then we will grow properly. मीन्स अगर हम प्रॉपर डाइट खाएंगे तभी हमारी जो ग्रोथ है वो ठीक से होगी। और इसीलिए यहाँ पे रजत भी यही कहता है उसकी मदर के लिए कि जो मम्मा है वो हमेशा फूड हैबिट्स का बहुत ध्यान रखती हैं। सो वैन इट इज़ हर टर्न इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड डाइट। और जब भी उसकी मदर उसका लंच पैक करती हैं तब वो हमेशा बैलेंस्ड डाइट ही रखती थी। मीन्स उसके हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हैं। मॉम डजंट माइंड गिविंग मी कर्ड टू। और उसकी जो मॉम है वो उसको कर्ड देना बिल्कुल नहीं भूलती। मीन्स जो उसका लंच होता है उसमें वो दही ज़रूर देती हैं। I alone know how messy it becomes at times, but Dad is quick and fast. Dear students, the curd is taking in the lunch is very messy, so that's why that boy does not like the curd in his lunch, but he likes while taking the lunch by his father. But Dad is quick and fast. It takes just 2 minutes to make my recess a party time. Here he always admired his father that his father packs his lunch and he makes his lunch time his recess as a party. मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो फूड है वो उसके फादर उसकी पसंद के जो फूड है वो उसमें उसके लंच बॉक्स में रखते थे और उसकी जो ड्रेसेस था उसका जो लंच टाइम था उसको पार्टी टाइम बना देते थे, इसलिए वो अपने फादर से बहुत ही खुश था। It is a different story how for those 2 minutes he has to spend 2 hours to convince mom that what he has packed in the tiffin is not junk food. Whatever he packs in my tiffin, that boy is saying कि मेरे जो फादर हैं वो भले ही कुछ भी रखते थे अपने मेरे लंच बॉक्स में, बट जो मुझे पसंद होता था वही रखते थे, चाहे वो जंक फूड क्यों नहीं हो। लेकिन मेरी मदर को कन्विंस में जस्ट 2 मिनट का जो लंच बॉक्स उसको पैक करने के लिए मेरी मदर को कन्विंस करने में उन्हें 2 घंटे लग जाते थे, ऐसा बच्चा बता रहा है। आर यू रीडिंग? Have you packed your bag according to your timetable? Don't complain about a bagging later, will you? जैसे कि आप सभी की मदर भी कहती होंगी जाते वक्त कि बेटा आपने लंच ले लिया है, आपने बॉटल ले ली है, आपने अपना ज़रूरी सामान ले लिया है। इस तरह से रजत की जो मदर हैं वो भी उससे कहती थी कि बेटा क्या तुमने लंच बॉक्स ले लिया है, क्या तुम अच्छे से रेडी हो गई हो, सारा सामान अपने साथ रख लिया है और तुमने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपना बैग पैक किया है, नहीं तो फिर तुम्हें बाद में बैग एक होगा। अगर ज़्यादा हैवी लोड लेके जाओगे, हैवी बैग लेके जाओगे तो बैग एक होगा, फिर तुम मुझे कंप्लेन मत करना, ऐसा उसकी मदर उससे कहती है। द क्वेश्चंस गो ऑन। और इस तरह से उसकी मदर के क्वेश्चंस उससे चलते आते हैं जब तक कि वो स्कूल के लिए रेडी नहीं होता। द क्वेश्चंस गो ऑन। आई गिव अ टाइट हग टू माई पेरेंट्स एंड मूव on with my grandma. As we all know that his grandma goes to the bus stop to send him the school. So before going with his grandma, he
he gives a big hug to his parents. My grandma is an alumna of St. Bede's College. Here he is saying that his grandmother is an alumna, means pupil of school of university, means वो वहाँ की एक शिक्षिका से शिक्षित रह चुकी हैं. एंड ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट, और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वहाँ से उन्होंने एजुकेशन मिली है. एज शी वॉक्स विथ मी शी ट्राइज टू कीप पेस विथ माई लॉन्ग स्ट्राइड्स. हियर इज सेइंग दैट व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू द बस स्टॉप एट द टाइम माई ग्रैंड मदर ऑल वॉक्स विथ मी, मीन्स जैसे आप जानते हो कि बच्चे जल्दी जल्दी चल के जाते हैं, लेकिन जो ग्रैंड मदर होती हैं वो थोड़ा धीरे चल के जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रैंड मदर हैं वो उसके साथ साथ ही चलती हैं. Education is very essential for the overall development of one's personality. Grandma often repeats the above question. Here the boy is saying that उसकी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा ये कहती थी कि बेटा एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी हर किसी की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. She loves my readiness and enthusiasm for going to school. As I told you that I get up early in the morning for going to school, this boy is also saying that when he gets up early in the morning to go to the school, he has an enthusiasm in his heart and he is very excited to go to the school. It is Wednesday and the timetable is indeed very exciting. बच्चा कहता है कि आज तो वेडनेसडे है और टाइम टेबल बहुत एक्साइटिंग है. A game period, a music period, and to top it, Miss Dare is on leave. Here, boy is saying that this is the Wednesday, and on this day, music lecture and the games lecture is going on, but Mrs. Dare is on leave. Mrs. Dare भी छुट्टी पर है, तो वो भी उनका फ्री लेक्चर होगा, इसलिए बच्चा बहुत खुश है. How thrilling it will be to be out of the class at the time when he thinks that there are 3 lectures in which he can do some mischief in his school. Hurriedly we reach the bus stop where the children are already waiting anxiously for me. वो अपनी दादी माँ के साथ बस स्टॉप तक जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े होकर उसी का इंतज़ार कर रहे थे. रजत 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 दे शाउट लाउडली, वो जो बच्चे थे वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगे, रजत रजत रजत. हाँ, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी टुडे, आर दे आल्सो एक्साइटेड अबाउट द गेम्स पीरियड. यहाँ पे बच्चा कहता है कि आज ही मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, क्या इनको मतलब आज इन्हें मुझसे क्या चाहिए जो ये आज मेरा नाम ले रहे हैं, क्या इन्हें मालूम है कि आज हमारा गेम्स का लेक्चर है. No, it couldn't be so because all of them aren't from my class. वो रजत कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो मेरी क्लास के है ही नहीं. It's Rehab's birthday, they announced. और फिर सारे बच्चों ने जब वो बस स्टॉप पे पहुंचा है तो सारे बच्चे उसको बताते हैं कि आज रेहाब्स का बर्थडे है. Happily, oh how could I forget that Rehab has been carrying me to school from last 7 years. यहाँ बच्चा कहता है कि ओ मैं कैसे भूल सकता हूँ रेहाब का बर्थडे, हमको स्कूल में 7 साल हो चुके हैं, हमने 7 साल स्कूल में साथ में बिताए हैं. एंड यट आई हैव फॉरगॉटन हिज बर्थडे, और फिर भी मैं उसका बर्थडे भूल गया, ऐसा रजत कहता है. लास्ट ईयर आई हैड गिवन हिम अ ह्यूज हैंडमेड कार्ड. आई हैड टेकन हेल्प फ्रॉम साहिब अंकल इन मेकिंग इट. हियर बॉय इज सेइंग दैट on the last birthday of Rehab's, he has given a card to him and he has taken the help of साहिब अंकल. उसने साहिब अंकल की मदद से एक कार्ड बनाया था और रेहाब को बर्थडे गिफ्ट में दिया था. साहिब अंकल हैज़ a small shop. साहिब अंकल की एक छोटी सी शॉप है. He repairs all kinds of electronic gadgets. He fixes a delicate wiring system in the car. He called it a resistor, and when Rehabs opened the car, the sound of the blaring horn startled him. He jumped 2 feet high. Here, boy is saying that he made a car in which
his Sahib uncle has fitted some wires and there were music in that card. When his friend Rehab opened this card, then music rang at that time and Rehab's become very happy to listen that music. द बस अराइव्स ऑन टाइम, उसके बाद जो बस है वो टाइम पर पहुंच जाती है. वी लेट द जूनियर्स बोर्ड द बस फर्स्ट, सबसे पहले छोटे बच्चे वो जाते हैं बस में. दैन वन बाय वन वी मूव टू अवर कॉलेज back seats. Then they have to those are the senior students, they have to sit in the back side of the bus. The moment the bus started, we all burst into a melodious scintillating song. जैसे ही बस में वो सब बच्चे चढ़ जाते हैं और जब बस स्टार्ट होती है सारे बच्चे एक साथ गाना गाने लगते हैं. फ्रेंड्स, when we scream together can our song be called a song? रजत कहता है कि दोस्तों क्या अगर हम साथ में एक साथ चिल्लाते हैं, जोर से चीखते हैं, क्या उसको हम सॉन्ग कहेंगे? बट रेहाब थिंक्स अदरवाइज, बट रेहाब को बिल्कुल बुरा नहीं लगा. ही थिंक्स दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ अ स्वीट वॉइस. लेकिन रेहाब को बहुत ही अच्छा लगा. सभी लोग चीखने लगे तो रेहाब को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसका बर्थडे था. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रेहाब भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू. यहाँ पर इस तरह से वो सॉन्ग गाने लगते हैं. रेहाब इज़ ओवरवेल्म्ड. रेहाब जो है वो अपने बर्थडे पर इतनी सारी विशेष सुनकर बहुत खुश हो जाता है. रवि प्रेजेंट हिम अ बुकेट वाइल रूही गिव्स हिम अ पेन. रवि जो है उसने उसको बुके दिया था जबकि रूही ने उसको एक पेन दिया था. विच हैज़ अ कलरफुल थ्रेड. रूही ने जो पेन दिया था उस पर कलरफुल थ्रेड लगा हुआ था. रेहाब पुट्स इट अराउंड हिज नेक एंड सेज अटेंडेंस टाइम. रेहाब ने उस पेन का जो थ्रेड था उसको गले में टांग लिया और फिर सबसे कहने लगा कि अब ये प्रेजेंट का समय है, हाँ सबकी प्रेजेंट लूँगा, अटेंडेंस का टाइम है. वी ऑल बर्स्ट इनटू रॉयरिंग लॉफ्टर. और सभी हम सभी जोर जोर से हंसने लगे. आई क्विकली टेक माई टिफिन आउट. गेस वॉट इज़ देयर? डैड हैज़ बेक्ड अ चॉकलेट केक. यहाँ पे रजत कहता है कि मैंने जल्दी से अपना लंच बॉक्स निकाला और उनसे पूछा कि गैस किया कि इसमें क्या है, और देखा तो उसमें डैड ने क्या रखा था, एक केक रखा था, एक चॉकलेट केक रखा था. आई ऑफर हिम अ पीस बट ही रिफ्यूज इट पोलाइटली. मैंने रेहाब को ये जो केक है वो ऑफ़र किया लेकिन उसने मुझे पोलाइटली मना कर दिया. यू हैव टू स्टे इन स्कूल टिल 2 o'clock. क्यों उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि मुझे 2 बजे तक स्कूल में रहना है, इसलिए उसने मना कर दिया कि तुम अपना लंच खाना क्योंकि 2 बजे तक तुमको स्कूल में ठहरना है, तुम भूखे कब तक रहोगी. ऑन इंसिस्टिंग अगेन ही पिक्स अप अ स्मॉल पीस. लेकिन मैंने फिर भी उनसे आग्रह किया और इसलिए उन्होंने एक छोटा सा पीस ले लिया. एंड थैंक्स मी प्रोफिसली. और उन्होंने मुझे बहुत सारा थैंक्स क्यों कहा. एंड देन ही सेज चिल्ड्रन बैक टू योर रूटीन. और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो बच्चों अब अपने अपने रूटीन में जाओ. इनहेल एक्सेल मेडिटेट व्हाइल आई कैरी ऑन विथ माई वर्क. अब आप सब लोग जाओ और अब मैं भी अपना काम पे अपनी क्लासेस में जाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा. तो अब सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं. द बस कीप्स मूविंग टेकिंग टर्न्स थ्रू लैंड्स एंड बायलेंस. से बस जो है वो जा रही थी, हर एक गली मोहल्ले में से होकर जा रही थी. ब्रिंगिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हेल्पिंग देम टू मिंगल. जगह जगह से बच्चों को लेकर जो बस जा रही थी और एंड अंडरस्टैंड ईच अदर इन द बेटर वे. और हर किसी को समझने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा टाइम था. एवरीवन नाउ नोज दैट एजुकेशन अलोन एम्पावर्स एंड मेक्स अस ट्रू ह्यूमन बींग्स. Now everyone has understood that education has empowers and we have to also get educated. It makes us a true human being. That means जो एजुकेशन है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है, हमें लोगों से कैसे बिहेव करना है ये हमें समझाती है. द स्कूल बस मूव्स ऑन विथ जॉयफुल हार्ट्स. स्कूल बस जो है वो सभी बच्चों को लेकर जाने लगी. With joyful hearts, each one aspiring to be better, each one with a dream and a hope. हर एक के मन में बहुत होप थी, ड्रीम्स थे और हर कोई अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहता था. सभी बहुत ही खुश थे क्योंकि रेहाब का बर्थडे था. तो ये थी छोटी सी स्टोरी. थैंक यू.